Hello and welcome. In my last video in part A, I told you that the formation of primitive streak and the gastrulation process, the beginning of the gastrulation process, where the germinal layers or the three germ layer forms, ecto, meso and endoderm. Along with that, I briefly told you that few cells from the mesoderm migrates towards the primitive streak at the cephalic end and caudal end, and they forms bilaminar small disc-like structure. As you can see in this photo, at the cephalic end there is a bilaminar disc, and at the caudal end there is bilaminar disc. From the cephalic end, here originates the buccopharyngeal membrane, and from the lower part or the lower bilaminar disc, here originates cloacal membrane. From the buccopharyngeal membrane, all the structures of our throat and oral cavity appears or originates, and from the cloacal membrane, all the structures of urogenital triangle and anal triangle along with the urethra, vagina and anal opening are originates. Okay, now vaginal opening originates in women only. Now 16th to 17th day, what happens? The process is known as neurulation. Neurulation means the creation or the formation of neural tube occurs. Okay, the entire process begins with the cephalic end, which is also known as the cranial end of this primitive streak. In my earlier video, as you can see in this photo, I told you that the cephalic end of this primitive streak has primitive pit inside the primitive node. Now the cells present in this primitive pit, they proliferates up to the precaudal plate, okay, and forms a solid cord. That cord is known as prenotochordal process, और इट इज ऑल्सो नोन एज हेड प्रोसेस. मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पिछले वीडियो में आपको ये इस फोटो में दिखाया था कि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है, इसके ऊपर वाला पार्ट जिसको हम सेफेलिक एंड कहते हैं, इधर में रहते हैं आपका प्रिमिटिव नोड जिसका दूसरा नाम है हैंसेंस नोड, और इसके अंदर रहते हैं प्रिमिटिव पिट जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोस्पोर. ना अब क्या होता है, इस ब्लास्टोस्पोर के अंदर जितने कोशिका है वो संख्या में बढ़ जाता है. ठीक है, बढ़ने के बाद क्या होता है, ऊपर में जो प्रीकॉर्डल प्लेट है उधर तक पहुंच जाते. पहुंचते पहुंचते क्या करता है, ये एक सॉलिड कॉर्ड बनाता है. ठीक है, मजबूत कॉर्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं प्रीनोटोकॉर्डल प्रोसेस या फिर सर का हिस्सा, हेड प्रोसेस. नाउ द केविटी प्रेजेंस इनसाइड दिस प्रिमिटिव पिट एक्सटेंड्स अप टू द प्रीकॉर्डल प्रोसेस और द हेड प्रोसेस, एंड दैट केविटी अल्टीमेटली फॉर्म्स इनटू प्रीनोटोकॉर्डल कैनल. मतलब ये जो प्रिमिटिव पिट है इसके अंदर एक गड्ढा है. ठीक है, गड्ढा क्या होता है, ये प्रोनोटोकॉर्डल प्रोसेस ऊपर तक पहुंच जाता है, जिसके लिए हम इसको कहते हैं प्रीनोटोकॉर्डल कैनल. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रीनोटोकॉर्डल नाली है, इसमें जो जितने सारे कोशिका रहते हैं वो धीरे धीरे एंडोडर्म के साथ मिल जाता है. मिलते मिलते क्या करता है, ये जो कैनल है वो क्रेनियोकॉर्डली, मतलब ऊपर से सर से लेके नीचे तक क्रेनियोकॉर्डली लंबा होता है. ठीक है, ये विस्तार करता है. विस्तार करने के टाइम क्या होता है, ये एक कनेक्शन बनाता है एमनियोनिक कैविटी और यॉक सैक के बीच में. समझे? नाउ दिस कम्युनिकेशन पार्ट इज नोन एज न्यूरोएंटेरिक कैनल. नाउ इन दिस यॉक सैक, दिस न्यूरोएंटेरिक कैनल flattened into notochordal plate, and then it converted into notochordal groove, and then it separates from the endoderm, and ultimately we call it definitive notochord. Now this notochord turned into nucleus pulposus inside of the intervertebral disc and also forms the apical ligament of the spine. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो नोटोकॉर्ड है वो बाद में न्यूक्लियस पल्पोसस में बदल जाते हैं, जो आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर रहते हैं, और स्पाइन के सामने जो एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस रहता है वो बनाने का मदद करता है. नाउ एज यू कैन सी इन दिस फोटो, दिस न्यूरल ग्रुप व्हाट हैपेंस, it becomes deeper and deeper, it forms a cleavage formation, and ultimately this both part folded together and fuse with each other, and ultimately forms a tube-like structure, and that is known as neural tube. Now during the closure of this neural fold, the tip portion of these folds are known as neural crest. Okay, now from this neural tube our central nervous system originates, and from this neural crest our peripheral nervous system originates. ये जो पहले न्यूरल ग्रुप था वो क्या होता है, वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा गहरा होता है. गहरा होने के टाइम क्या होता है, ये जो न्यूरल फोल्ड है, एक गहरा होने के टाइम इसका जो किनारा वाला हिस्सा है वो फोल्ड में बदल जाता है. फोल्ड होते होते क्या होता है, एक टाइम के बाद ये दोनों फोल्ड आपस में मिल जाता है. मिलने के बाद ये एक ट्यूब या एक नाली जैसा फॉर्मेशन होता है. ये नाली तैयार होने के बाद इसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब.
जब ये न्यूरल ट्यूब का ये जो न्यूरल फोल्ड था वो जब बंद हो रहा था, ऊपर वाला हिस्सा जो न्यूरल फोल्ड था इसको हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट। तो जो ये न्यूरल क्रेस्ट है, इधर से हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, और जो न्यूरल ट्यूब बन गया इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, सो टुडे अप टू दिस मच, सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट सी। टिल देन बाय।